for words. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. Holy God, all praise is due. I stand in awe of you. Oh, holy God, to whom all the praise is due, I stand in awe of you. मैं खड़ा हूँ तेरे आदर में, मैं खड़ा हूँ तेरे आदर में। पवित्र खुदा
तारीफ के काबिल मैं खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के काबिल मैं खड़ा तेरे आदर में। हो मैं खड़ा हूँ खड़ा, मैं खड़ा हूँ खड़ा पवित्र खुदा तारीफ के काबिल मैं खड़ा तेरे आदर में। पवित्र खुदा मैं खड़ा तेरे आदर में। हो तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, योग्य है, पवित्र है, सबसे महान, तू श्रेष्ठ है और खूबसूरत है। ओ हम जो हैं तुझ में, तुझसे तेरे लिए, चरणों में तेरे अब हम रहे सजदा करें। हम जो हैं तुझ में, तुझसे तेरे लिए, चरणों में तेरे अब हम रहे सजदा करें। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, और खूबसूरत है। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है और खूब। तू योग्य है, तू योग्य है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है और खूबसूरत है। हो। हम जो हैं तुझ में, तुझसे तेरे लिए, चरणों में तेरे अब हम रहे सजदा करें। जो है तुझ में, तुझसे तेरे लिए, चरणों में तेरे अब हम रहे सजदा करें। लोग कहे तू योग्य है, तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, और खूबसूरत है। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, और खूबसूरत तू योग्य है, तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, आनंद है, और खूबसूरत तू योग्य है, तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ आनंद है और खूबसूरत है। तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान। अब हर जाति और प्रजाति, और प्रजाति, हर एक जुबान हर एक जुबान
बस तेरी जय तू जो कल था आज वही है और हमेशा और हमेशा रहेगा एक समान अब हर जाति और एक प्रजाति हर जुबान हर एक जुबानी बस तेरी जय तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान अब हर जाति और प्रजाति हर एक जुबानी जय गाए तू योग्य है सबसे महान है तू श्रेष्ठ है अनंत है और खूबसूरत है तू योग्य है सबसे महान है तू श्रेष्ठ है अनंत और खूबसूरत है तू योग्य है पवित्र है सबसे महान है तू श्रेष्ठ है अनंत है और खूबसूरत तू योग्य है पवित्र है सबसे महान है तू श्रेष्ठ है और खूबसूरत है This is my desire to honor you. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my. I live for you alone. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment, Lord, have your ways, ways in me. Lord, have your ways, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're altogether lovely, oh, altogether wonderful to me. Oh, so here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether wonderful.
You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see and beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that all together, all together, all together wonderful to me. So here I am to worship, here I am to, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। ओ जगी ज्योति तू उतरा अंधकार, तूने मेरी आंखें खूबसूरती खूबसूरती आशा जीवन तेरे संग की। ओ आराधना करूं यीशु, सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति अद्भुत मुझको। ओ आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, है ऊंचा महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। राजानंद तू सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं मेरा खुदा। हो तू है अति सुंदर, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना आराधना है मेरा
खुदा और तू है अति सुंदर, तू है अति अद्भुत। हो आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, मेरा खुदा हो तू है अति सुंदर, तू है अति अद्भुत। मुझको यीशुआ तेरी आराधना हो, तेरी आराधना कहे यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं मेरे कामों से, मेरी बातों में, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु। कहे तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, और तू ही है मेरी आरज़ू। कहे यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, हे यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ 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 तेरी आराधना हो, यीशुआ कहे यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ 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 तेरी आराधना हो, यीशुआ जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से, मेरी बातों में भी, एक और बात, जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, जब कुछ करूं मेरे कामों से, मेरी बातों में, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, ओ तू ही है मेरी यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ 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 तेरी आराधना हो,
सांसों से तेरी आराधना, मेरी रूह से ख्यालों में से इरादों में बस मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है। आवाज उठाकर, हाथ उठाकर, यीशुआ तेरी आराधना हो, ओ यीशुआ तेरी आराधना हो, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा ओ मौत से बचाया, जीवन नया नाम लेकर पुकारा, महिमा से मुझको भर दिया। एक बार मौत से है बचाया, जीवन नया नाम लेकर भर दिया। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ओ करुणा भलाई तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा मैं हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर
फिर से मिलकर कहेंगे आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू हमारा हो, पूरी हो तेरी, आए तेरा आदर और महिमा हो तेरी, आदर तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी, आए तेरा राज यहाँ, हाथ उठा ओ मैं हाथ गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर मैं हाथ मैं हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ओ यीशु तेरा नाम रहे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ओ तेरा नाम रहे, यीशु यीशु तेरा नाम रहे, यीशु तेरा नाम रहे। So here I am to worship, here I am to say, you're my God, you're altogether worthy, wonderful to me. Lord, you are worthy, Jesus. Lord, you are worthy, Jesus. We praise you, we praise you. We praise you, Jesus. तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान, हर जाति और प्रजाति, हर एक जुबान भी तेरी जय गाए। तू जो कल था आज वही है और हमेशा रहेगा एक समान। तू योग्य है, पवित्र है, सबसे महान है, तू श्रेष्ठ है और खूबसूरत है, तू खूबसूरत है। Praise you, Jesus. Praise you, Father. बस हट जा।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Udava Shantana Vikala Rabalaraga Shandana। प्रार्थना करें, प्रभु को हम सुबह सुबह आज धन्यवाद दें, हमारे परमेश्वर को महिमा दें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज सुबह की इस सुंदर समय के लिए आपको हम आदर देते हैं, महिमा देते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है और उसके जैसा और कोई भी नहीं है। हम आदर महिमा आपको देते पिता। इस मॉर्निंग प्रेयर में आज सुबह जुड़े हुए सारे लोगों के लिए धन्यवाद। दूर दूर से अलग अलग जगहों से प्रार्थना करने के लिए जुड़े हुए सब लोगों को आशीष बोलते हैं, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप भला है, सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और सुबह उठना और प्रभु की आराधना करना, परमेश्वर को महिमा देना, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारी वर्शिप टीम के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुबह सुबह वो दूर दूर से चर्च में जाकर आराधना करते हैं और हजारों लोगों के लिए वो आराधना आशीष का कारण बन रही है। सुबह उठना बहुत बड़ी बात है, जल्दी उठना तो नहीं, जल्दी उठना। और आप सबके ऊपर प्रभु ने अनुग्रह दिया, धन्यवाद। कल मैं चर्च में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, उपवास प्रार्थना में मैं बोल रहा था सोना तो हमारे लिए आशीष है, ज्यादा सोना हमारे लिए आशीष नहीं। तो बाइबल भी कहती है आलस के साथ पर की सेवा करना श्रापित है। हमें परमेश्वर ने आशीष के लिए चुना है। अगर एक व्यक्ति आलसी बनकर जिएगा तो आशीषित नहीं हो पाएगा, वो अपने जीवन में और श्रापित हो जाएगा। और मैं कल एक चीज बोल रहा था, सोचना, हम आगे के बारे में सोचना एक आशीष है, लेकिन ज्यादा सोचना, एक्स्ट्रा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना वो हमारे लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं, जैसे अभी जवान लोग अगर हमारे साथ जुड़े बाद में सुनेंगे, जवान भाई बहन बहुत ज्यादा सोचते हैं, कभी अपनी पढ़ाई को लेके, अपने भविष्य को लेके, और बहुत ज्यादा सोचते 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 उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो ज्यादा सोचना भी खतरनाक है, इसलिए वो ना वर्शिप कर पाते, ना चर्च जा पाते, ना बाइबल पढ़ पाते, ना और कुछ काम कर पाते, क्योंकि अधिक सोच सोच के दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। अच्छी बातें सोचें, परमेश्वर के लिए हम बड़े काम करेंगे उसके बारे में सोचें, लेकिन एक अपने अंदर टेंशन कम ना आने दें। तो प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़े। एक वचन हम सब लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा हमने सुना है उस वचन के बारे में। इफिसियों की किताब पहला अध्याय, इफिसियों की किताब पहला अध्याय। कल हमने इस वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन किया था चर्च में। आशीषित है ये वचन, हमारे पास्टर और अधिकतर हमारे कलीसियाओं में इस वचन को बार बार लोग बोलते हैं। इफिसियों पहला अध्याय इसका 3 वचन में देखते हैं, वहां क्या लिखा हुआ है। इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है मसीह में आत्मिक आशीष। फिर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सच में हमें परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीष दे दी। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह में। तो कुछ बातें मैं आपसे आज सुबह बोलकर जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। परमेश्वर की आशीष
यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में आप अनुभव करें, तो वो आशीषें हमारे योग्यताएं, हमारी काबिलियत, ये हमारे अपने अच्छे कर्म, हमारे अच्छे कुछ बातों से नहीं, मसीह में परमेश्वर हमें आशीष करते। पौलुस इस कलीसिया को एक संदेश, एक रहस्य बता रहे हैं। एक बड़ी गहरी बात है वो कि परमेश्वर ने हमें यीशु में आशीषित कर दिया और आशीषें दे दी है। देंगे नहीं, आत्मिक आशीषें दे दी है। और आगे भी हम पढ़ते हैं, जब मैं पिछले दिनों में जब पढ़ रहा था, जब परमेश्वर ने आशीष दे दी, मेरे अंदर एक विचार आया, कौन सी आशीष है वो, क्या है वो आशीष? तो वहां लिखा हुआ है आत्मिक आशीष, और स्वर्गीय स्थानों के अंदर परमेश्वर ने वो आशीष हमें दी है। तो 4 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। तो जो आत्मिक आशीषों के बारे में पौलुस बोल रहे हैं, वो आशीषें इसी अध्याय के आगे के वचनों में लिखी हुई। मैंने जब इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग बाइबलों में जब पढ़ रहा था, तब पता चला वो आत्मिक आशीषों के बारे में पौलुस आगे बता रहे। और उनमें से एक आशीष क्या है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। पर पहली एक आशीष की बात है, एक बड़ी आशीष है हमारे लिए कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमें बोले चुन लिया, हालेलुया। 800 करोड़ लोगों की आबादी में परमेश्वर ने हमें चुन लिया। कोई यदि किसी को चुनता है, इसका मतलब है वो बेकार नहीं है, वो व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर की महान योजना है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं किसी काम का नहीं, इस धरती पर मैं ऐसे ही आ गया, या फिर मेरे लिए परमेश्वर की कोई खास योजना नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छे टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने आपको भी चुन लिया। परमेश्वर की महान योजना का भाग है आप में से हर एक व्यक्ति। तो सबसे पहली बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ, हर दिन प्रभु को धन्यवाद करें इस विषय के लिए कि 800 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस बड़े पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य में आने के लिए चुन लिया। मुझे परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए चुन लिया। आमीन। और देखो चुना भी कैसे लिखा है, उसमें चुन लिया। उसमें का मतलब यीशु में हमें चुना गया है। तो ये आशीषें जो स्वर्ग की है, आत्मिक आशीषें हमें यीशु में मिलती है, दुनिया में नहीं मिलेगी, यीशु में। आमीन। और फिर दूसरी बात लिखा हुआ है, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। दूसरी एक बात बहुत आशीष की बात है, वहां लिखा है हम परमेश्वर के निकट आए, हम उसके प्रेम के कारण पवित्र किए गए, निर्दोष किए गए। तो देखो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो स्वर्गीय स्थानों से हमें यीशु मसीह में मिली, यीशु के द्वारा मिली है कि हम सब पवित्र किए गए। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, मैंने पाप किया, हे परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, ऐसे बोलने से यीशु के लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं। और वहां पर देखते हैं हम पवित्र किए गए, उसमें यानी यीशु में हम पवित्र किए गए, हम निर्दोष बन गए। हम कितने भी अच्छे काम कर लेते, कितने भी हम अपनी करने के बाद भी हम कभी पवित्र नहीं बन सकते थे और कभी हम निर्दोष नहीं बन सकते थे, क्योंकि सबने पाप किया है, सबके ऊपर दोष है, सब दोषी है। लेकिन यीशु मसीह में हमें मिली एक बहुत बड़ी आशीष है कि हम में से एक एक व्यक्ति जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, अब परमेश्वर की दृष्टि में वो निर्दोष है और वो पवित्र किए गए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। मैं इस बातों को पढ़ रहा था जब मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रहा था
परमेश्वर महान है। और आगे लिखा हुआ है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। आमीन। फिर यहाँ हम अगली बात देखते हैं, अपनी इच्छा से। परमेश्वर को किसी का दबाव नहीं था कि वो हमें आशीष करे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें आशीष करने के लिए चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी से, हमने ऐसा कुछ किया हो कि परमेश्वर को जबरदस्ती हमें आशीष करना मजबूर कर दे हम आशीष करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने हमसे प्यार करते हुए अपनी इच्छा से, क्या लिखा हुआ है, हमें यीशु मसीह के द्वारा उसके पुत्र, लेपालक पुत्र होने के लिए आशीष किया। एक बहुत बड़ी बात है, आज सुबह मैं बोलना चाहता हूँ, हमें बहुत धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र होने के लिए यीशु के द्वारा परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अनुग्रह दिया। आमीन। तो मैं यहाँ पर एक बात मेरे मन में आया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पुराने नियम में जब लोग कोई अनाथ को गोद ले लिया करते थे, उन्हें एडॉप्ट करते थे, तो जो अधिकार अपने निज पुत्र का था, वही अधिकार गोद लिए हुए पुत्र को भी उतना ही अधिकार दिया जाता था। तो हम सब लोग को परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, तो यीशु के द्वारा, वहां बड़ा साफ लिखा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हमें गोद ले लिया, हमें अपना पुत्र बना लिया। हम पुत्र थे नहीं, हम तो बैरी थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें अपना पुत्र बनाया। और अब पुत्र को मिलने वाले सारे अधिकार, परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के सब अधिकार के वारिस हम भी बन गए। हमें भी परमेश्वर ने सब पुत्रत्व का अधिकार दे दिया। तो इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो बहुत खुशी और धन्यवाद के साथ आए, बेटा आ रहा है। अब परमेश्वर के पास बेटी आ रही है, बेटा जा रहा है, कुछ मांगने के लिए या मिलने के लिए। अब हम बाहर के नहीं, घर के बना दिए। हम अब कोई अनजान नहीं है, हम परमेश्वर के घर कैसे बन गए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दी है। फिर आगे लिखा हुआ है 6ठे वचन में कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में का मतलब यीशु में। वो बाइबल कहती है एक ही है प्रिय, जो यीशु का, परमेश्वर का प्रिय यीशु। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु को देख के परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो यीशु के बारे में लिखा है, उस प्रिय में, यानी यीशु में हमें फ्री में सेंटमेंट मिला है। एक और आशीष, क्या आशीष है वो, कि उसके अनुग्रह को हमें परमेश्वर ने दे दिया। आमीन। ग्रेस। हालेलुया। आप अगर आप मेरे साथ हैं तो आप बोले कृपा, ग्रेस, दया, परमेश्वर का फेवर हम सबको परमेश्वर ने दिया है। हम अपने जीवन में देखते हैं, जब कुछ लोग बोलते हैं मैं व्यभिचार छोड़ना चाहता हूं, मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहा, तो आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु के द्वारा आपको ग्रेस मिला है कि अब आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाए और आप उस व्यभिचार से आजाद हो सकते हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे मैं सुबह उठ नहीं पाता, तो हम सब लोग वीक हैं अलग अलग एरिया में, लेकिन परमेश्वर ने दिया है, जिस एरिया में वीक है वो एरिया में परमेश्वर की महिमा के लिए आप काम करना शुरू करें। और अलग अलग बातों में अपने आप में अब कभी मत कहना मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब बोलना है उसकी वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस खुद बोलते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूँ
परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं आज जहां भी पहुंच गया परमेश्वर के अनुग्रह से पहुंच गया। तो वो कभी नहीं कहते मैंने प्रार्थना किया इसलिए मैं यहाँ तक पहुंच गया, मैं बहुत पवित्रताई में जी रहा था इसलिए यहाँ तक पहुंच गया। उसने बोला परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आज यहाँ तक पहुंच गया। हालेलुया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आज आप हर दिन बोलना है परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिल गया। और वो अनुग्रह पता किस लिए मिला कि उसकी महिमा और स्तुति हो। यानी जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के लिए अद्भुत जीवन जिएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, जो नहीं कर सकते थे वो भी करने लगेंगे। तो उस अनुग्रह को परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। यदि आप पवित्रताई में जिएंगे, उनके अनुग्रह से जी पाएंगे, अपनी ताकत से नहीं, तो परमेश्वर की इससे महिमा होगी। और आप ऐसे हर एक अलग अलग बातों में जो आपसे नहीं हो सकता आप करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से कर पाएंगे। तो उसके द्वारा ईश्वर को महिमा देना कि मैं अपनी ताकत से नहीं, जैसे पौलुस ने बोला उसके अनुग्रह से आज इस सेवकाई यहाँ तक पहुंची, ये चर्च उसके अनुग्रह से यहाँ तक पहुंचा। आपको बोलना है मेरा बिजनेस उनके अनुग्रह से यहाँ तक पहुंचा। हालेलुया। प्रभु को महिमा दे और स्तुति दे और प्रशंसा दे और बढ़ाई दे। हालेलुया। उनका अनुग्रह हमें मिल गया, एक बहुत बड़ी आशीष है। जो नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं, जो कभी हमारे लाइफ में हम सोच भी नहीं सकते थे अब परमेश्वर हमारे द्वारा कर सकते हैं। अनुग्रह, और ये अनुग्रह हमें कैसे मिला है? सेंट में दे दिया, फ्री में दे दिया। और कैसे दिया? कि उस प्रिय में यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद यीशु मसीह के द्वारा हमें यह अनुग्रह परमेश्वर ने दे दिया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। फेवर मैं भी अपने जीवन में देखता हूं, जब मुझे आगे आकर लोगों से बात करना बहुत कठिन लगता था, बहुत डर लगता था, और लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है सच में। आज आप सबके साथ हम बात कर पाते हैं, हम लोगों को फेस कर पाते हैं। स्टेज पे आना मुझे डर लगता था प्रभु में आने से पहले, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से अब स्टेज पे खड़े होकर 13 साल से हम लोगों से प्रचार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से जो हम कभी नहीं सोच सकते थे वो होने लग गया। हम अपने घर के लिए कुछ आशीष नहीं थे, अपने घर को संभालने लायक नहीं थे, लेकिन आज उनके अनुग्रह से हजारों लोगों को संभाल पाते हैं और परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं। जो हमने अपने आप को नहीं बचा सकते थे, आज बहुत से लोगों को बचाने का कारण बन गए। अनुग्रह, फेवर। हालेलुया। अब आप भी कभी अपने आप में निराश होकर ना बैठे, हर दिन बोलना है प्रभु का अनुग्रह मुझे मिला है यीशु मसीह के द्वारा, वो भी फ्री में। फिर आगे लिखा हुआ है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। आमीन। बोले छुटकारा मिला है। छुटकारा का मतलब क्या है? जैसे एक व्यक्ति जेल में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति कैद में बैठा हुआ है और वो बाहर ही नहीं जा सकता, वो अंदर कैद है, वो अंदर बंद है। तो कोई बाहर से आकर उसकी जमानत लेता है या फिर उसके लिए कुछ भी करके उसको वहां से छुड़ा कर ले जाता है, तो वही है छुटकारा। हालेलुया। तो क्या होता था पुराने नियम के अंदर, पहले के समय में एक पहले लोग गुलाम बनाया करते थे। नौकर तो एक बार को सुबह आएगा शाम को चला जाएगा, गुलाम वहीं रहेगा। नौकर तो एक बार को कह देगा मैं ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन गुलाम कुछ नहीं बोल सकता। गुलाम को तो अच्छा लगे या ना लगे फिर भी मालिक के साथ रहना, मालिक के काम करना, और कोई टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है, गुलाम है, वहीं रहना। लेकिन कोई व्यक्ति आता था, कोई दयालु व्यक्ति, कोई धनवान व्यक्ति, तो आकर जिस व्यक्ति का वो गुलाम है उस व्यक्ति को उसका दाम देकर और बोलता था मैं इसको अब यहाँ से छुड़ा के लेके जा रहा हूँ, और उसका दाम चुकाकर हो सकता है आज के हिसाब से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी वो बोलेगा
वो उसको देंगे और फिर उस गुलाम को वहां से छुड़ाकर ले जाएगा। और हो सकता है वो तो अपने घर में भी ले जा सकता है, नहीं तो उसको आजाद भी कर सकता है, जहाँ अपने परिवार में रह ले या अच्छे से जिंदगी बिता ले। तो बिना दाम दिए कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता था। तो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आशीष ये है कि हम सब लोग शैतान के गुलाम थे। हम में से एक एक व्यक्ति पाप गुलाम, शैतान के गुलाम थे। हम चाहे या ना चाहे फिर भी हमें वो गलत काम करना ही पड़ रहा था। हम छोड़ना चाह रहे हैं फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। हम निकलना चाह रहे थे उस गुलामी से फिर भी निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह का लहू, और वहां लिखा हुआ ना, हमको उसमें, 7 वचन में लिखा उसमें। तो देखो, छुटकारा भी हमें यीशु में मिलता है, कहीं और छुटकारा नहीं मिल पाएगा। यीशु में है छुटकारा। और वो छुटकारा यीशु में क्यों है? क्योंकि यीशु ने अपना लहू हमें हमारे दाम के रूप में दे दिया। हमारे छुटकारे के लिए जो एक दाम था, एक कीमत थी, वो यीशु ने अपना लहू देकर हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया। छुटकारा मिल गया। हालेलुया! एक बहुत बड़ी आशीष है। अब पहले हम बोलते थे, हमारे हमारे खुद के घर के लोग भी और आपके भी अनुभव होंगे, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन अब हम उस शैतान के गुलाम नहीं है। अब तो आपके हाथ में, आप चाहो तो कर लो, चाहो तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अब हम आजाद हैं। इसका मतलब ये आजादी पाप करने के लिए नहीं है। अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, हम पवित्रताई से जिए, हम बुराई को छोड़ सकते हैं। पहले तो हम गुलाम थे व्यभिचार के, हम नहीं चाह रहे फिर भी करना पड़ रहा था। लेकिन अब हम गुलाम नहीं है, अब आप आजाद है, स्वतंत्र है। यीशु ने लहू दे के हमें शैतान के हाथ से छुड़ा लिया। अब आपके हाथ में है कि आप व्यभिचार भी कर सकते हैं और आप प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन भी जी सकते हैं। और मुझे विश्वास है आप लोग परमेश्वर के लिए जिएंगे। हालेलुया! अब हम गुलाम नहीं है। पहले हम बोलते थे मैं लड़ना नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो जाता है, लड़ाई होती रहती है, गुस्सा बहुत आता है। गुलाम थे पहले, लेकिन अब गुलाम नहीं है। अब हमें कंट्रोल करना का अधिकार है। हम चाहेंगे तो अपने ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम लड़ाई रोक सकते हैं, क्योंकि हमें छुड़ा लिया गया है। हालेलुया! अब हम गुलाम बोले, अब हम गुलाम नहीं है, शैतान के गुलाम नहीं, पाप के गुलाम नहीं, नशे के गुलाम नहीं, व्यभिचार के गुलाम नहीं, या किसी भी गंदी आदत के हम गुलाम नहीं है। हम नींद के भी गुलाम नहीं, हम आलस के गुलाम नहीं। पहले हम बोलते थे उठना चाहते, उठ नहीं पाते, अब हम छुटकारा पा चुके। आप सुबह उठना चाहेंगे तो उठ भी सकते हैं। आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। आमीन। प्रभु की महिमा हो। और आगे लिखा हुआ है, और अर्थात अपराधों की क्षमा भी हमें मिली है। तो पुराने नियम में क्या होता था, अपराध अगर कोई पाप करे तो अपराध क्षमा नहीं होते थे, अपराध ढांपे जाते थे। किसी जानवर का लहू बहाकर, जो पवित्र मेमना उसका खून बहाने से किसी व्यक्ति के जो पाप को ढांपा जाता था, क्षमा नहीं होते थे। लेकिन यीशु मसीह में और यीशु के द्वारा हमें मिली सबसे बड़ी आशीष क्या है पता है? कि हमें पापों से क्षमा मिली। हम में से एक एक व्यक्ति, कितने सारे पाप हमने किए थे, कभी उनके भुगतान हमसे नहीं हो सकता था, हम उनसे आजाद नहीं हो सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा करोड़ों लाखों पाप हमने कर दिए होंगे इतनी उम्र में, बचपन से अभी तक। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह पर जब विश्वास किया तो हमारे अपराध, हमारे पाप ढांपे नहीं गए, क्षमा हो गए, खत्म ही हो गए, बिल्कुल ही क्लियर हो गए। अब परमेश्वर जब हमें देखते हैं, यीशु मसीह में जब हमें देखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई पाप नहीं दिखाई दे रहा। हम सबके पाप क्षमा हो चुके हैं।
पापों की क्षमा सिर्फ यीशु में है। अपने अपनी कोशिश से, अपने कर्म से, अपने अपने भलाई के कामों से हम पापों से क्षमा नहीं पा सकते। सिर्फ यीशु के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलेगी, पापों से मुक्ति मिलेगी, पापों से मोक्ष मिलेगा। एक ही तरीका है, उसमें यानी यीशु में है। तो कुछ लोग कहते हैं जब यीशु क्रूस पर मर गया तो सारे लोग आज भी पाप में क्यों हैं? क्या सबके पाप के लिए नहीं मरा था यीशु मसीह? यीशु मसीह सबके पाप के लिए अपना लहू बहाया, अपनी जान दी। लेकिन जब कोई अपने मुंह से बोले यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए और मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तो वो यीशु में क्षमा मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप यीशु को बिना अंगीकार किए अपना प्रभु माने आपको क्षमा मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। इस पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करे, अंगीकार करे और उसको क्षमा मिलेगी। आमीन। प्रभु की बहुत अद्भुत बातें हैं ये, हालेलुया। इन वचनों को पढ़ के बहुत आनंद मिल रहा था। आज समय हमारे पास और थोड़ा सा है, हम आगे भी एक दो वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हम आगे देखते हैं, जब जल्दी जल्दी उसका 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 हम पढ़ेंगे 11 वचन के अंदर, समय कम है। उसी में हर जगह देखो पौलुस कहता है उसी में, यीशु में, उसी में, सब कुछ यीशु में ही है। हालेलुया। वही बातें पौलुस समझाना चाहते हैं। यीशु में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी कि उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशीष पता क्या है? जब यीशु पर हमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लगी। पौलुस वही कह रहे हैं, इस पृथ्वी पर करोड़ों करोड़ों लोगों की आबादी वाले देश में, दुनिया में सबसे बड़ी आशीष क्या है? पवित्र आत्मा किसी ने पाई, पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग गई यीशु में। जब हमने यीशु पर विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा जीवन में आ गया, हमें अब पवित्र आत्मा मिल गया, हमारे ऊपर एक छाप लगी हुई है, होली स्पिरिट। और देखो अगली एक आशीष चौथे वचन में 14 में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए वो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। बोलो हमारी मीरास। मीरास का मतलब होता है जायदाद, एक बाप की जायदाद। और वो हमारा पिता कौन है? स्वर्ग का पिता, हमारा परमेश्वर। उनकी जायदाद के वारिस हमें मीरास मिली। जब हमने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर की मीरास हमें मिल गई, और मीरास हमें मिल गई उसके बयाने के तौर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप भी लगा दी। और जैसे बयान हमें पता है ना, कोई प्रॉपर्टी हम लेते तो अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपए बयाना दे दिया और बोलते हैं आगे की पेमेंट भी दे देंगे, तो आप ही की है, आपको दे देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, स्वर्ग की सारी पिता की जायदाद, उसकी विरासत हमारे लिए परमेश्वर ने दे दी है। बयाने के तौर पर पवित्र आत्मा दे दिया, और परमेश्वर कहना चाहते हैं बयाना तो मिल गया, उस यीशु में बने रहना, उस यीशु के साथ चलते रहना, और इस धरती के बाद जब यहाँ से जाएंगे, स्वर्ग की वो मिरास पूरी आपको दी जाएगी। एक पुत्र के लिए जो बाप ने रखा हुआ मिरास उसको मिल जाएगी। हालेलुया। इतने अद्भुत है ये सारे वचन, परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहते हैं पिता का धन्यवाद हो। इन सारी आशीषों में ना तो गाड़ी लिखी है, ना नौकरी लिखी है, ना चंगाई लिखी है। देखो ये आत्मिक आशीष है,
स्वर्गीय स्थानों में से आत्मिक आशीष है। ये है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीष है। ये इन आशीषों में कई शारीरिक आशीषों की बात नहीं लिखी हुई, और ये सारी आशीषें हमें यीशु मसीह में मिली। तो इसका मतलब हम नौकरी के लिए और चंगाई और घर और गाड़ी और धन के लिए उम्मीद ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यीशु ने बोला मेरे राज्य की खोज करो, तुम्हें ये सब भी मिल जाएगा। हालेलुया, ये भी मिल जाएगा। हमारी जरूरतों को परमेश्वर जानते हैं। यदि आपको नौकरी की जरूरत है, प्रभु जरूर देंगे। कोई घर की जरूरतें दे देंगे, कोई गाड़ी की जरूरतें परमेश्वर देंगे। जो जरूरतें हैं उसके राज्य में बने रहो, उसके राज्य में जियो, उसके राज्य के काम करो। परमेश्वर इस सारी आशीषें भी जो संसार की जरूरतें हैं वो सब देगा। लेकिन आत्मिक आशीष जब हमने प्रार्थना करके यीशु पर अपना जीवन समर्पण कर दिया, यीशु को प्रभु मान लिया, उस दिन से वो सारी आशीषें हमें मिल चुकी है। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आए हम प्रार्थना करें, प्रभु को महिमा दे। हालेलुया, धन्यवाद दे। कुछ समय बोले यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, बोले पिता धन्यवाद। जैसे पौलुस ने बोला पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की आत्मिक आशीषें मिल गई है। प्रभु को धन्यवाद करें। आज सुबह धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अब हमें रोने धोने की जरूरत नहीं है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उन सबसे बढ़कर हमें मिल गया, उस बातों के लिए धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने हमें चुनकर अपने राज्य में अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए अलग कर दिया। परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, परमेश्वर ने हमें निर्दोष किया, परमेश्वर ने हम सबको अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि हमें छुटकारा मिल गया, हमें छुड़ा लिया परमेश्वर ने उस शैतान के हाथों से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें अपराधों से और पापों से, सब पापों से क्षमा मिल चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम मिरास मिल चुकी है। इस सब कुछ हमें यीशु के द्वारा मिल गया। तो हर आशीष यीशु में है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु से कभी दूर ना हो। यीशु के द्वारा आज हम स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं, आशीष के वारिस बन चुके हैं। पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज सुबह सुबह आपकी अगुवाई में होते आपने अनुग्रह दिया ये वचन आपके लोगों के सामने बोलने के लिए। ये वचन लोगों को आप पवित्र आत्मा समझाएं, सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए ये सारे वचन यीशु के नाम में। अब हर एक के ऊपर जो जो यीशु पर विश्वास करके चलता है वो अनुग्रह आ गया है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। हमें परमेश्वर लाखों आत्माओं को बचाने के लिए अनुग्रह दे दिया है। हालेलुया, हमें अनुग्रह दे दिया है। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आज सुबह हमें आए आए हुए मीटिंग में, इस मीटिंग में जुड़े सब लोगों के लिए धन्यवाद। आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। सारी आदर, सारी महिमा आपको मिले। आज सुबह सबको आशीष को प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, नहीं आशीष दे दी। हालेलुया, आत्मिक आशीषें हमें मिल चुकी है, और जो जरूरतें हैं परमेश्वर वो भी सब पूरा करेंगे। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु से प्यार करें, यीशु में है सब कुछ। और हमें मालूम है आप में से बहुत सारे लोग आप ड्यूटी जाएंगे, अपना स्कूल जाएंगे, आप भी अपनी तैयारी करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, और इस लिंक को यूट्यूब के दूसरों को भी शेयर करें कि वो भी जब उठें तो इन वचनों से आशीषित हो और आराधना सुनकर आशीषित हो। इधर उधर के रील्स वीडियो देखने से अच्छा सुबह सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और वचन सीखें, आराधना करें, फिर दिन की शुरुआत करें। आज का दिन आप सबका बहुत आशीषित होगा। प्रभु में आगे बढ़े, फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष